Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 6, 3rd edition, New Oxford Modern English. Today we are going to solve full exercise of unit number 8, which name In a Tunnel. Page number 90 पर ये एक्सरसाइज है. एक्सरसाइज कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल है कंप्रीहेंशन. नेक्स्ट वर्किंग विद वर्ड्स. वर्किंग विद वर्ड्स में भी कई सारे क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट सी में लर्निंग अबाउट लैंग्वेज में के कई सारे क्वेश्चन हैं. नेक्स्ट पेज में ये फिल द ब्लैंक्स हैं. और लास्ट पेज में डी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग और लास्ट में है ई में है कंपोजिशन. कंपोजिशन तक के तमाम तर क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सॉल्व मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कंप्रीहेंशन में फर्स्ट क्वेश्चन है Why were the carriage windows pulled up when the train was going through a tunnel? आंसर लिखें इसका. The carriage windows were pulled up when the train was going through the tunnel to prevent the smoke from the engine coming into the carriage. Next B question है What kinds of things do you see in a tunnel? और ब्रैकेट में लिखा है When you are on foot. When you are on foot in a tunnel, you can see water dripping down the walk. The bricks are dull, sticky, sickly green. The light from outside shines in for quite a long way. C question है How many children were there in the tunnel? There were 3 children in the tunnel. D question है Which child was the most frightened? आंसर लिखें Phyllis was the most frightened. Next E question है Peter asks the others and what's that? What is the that he refers to? Peter is referring to the noise of the train. What were the wires over which Phyllis stumbled? Answer लिखें. The wires are those which connect the points or signals to the signal box. G question है How does the author describe the train hurtling by? Answer लिखें. With the words rush, roar, rattle, blast, hurtled, clanging, jungling, echoing, whiz. These questions are more challenging. Discuss them first. Why does Phyllis compare the train to a dragon? In what ways it is similar to a dragon? Do you think this is a good comparison? Phyllis compares the train to a dragon because it roars and puffs out smoke and fire like a dragon. Also, the train's light look like eyes glowing in the dark. I question the train described here is a steam train. These days, it is usual to find electric or diesel train on railway lines. Are these better? How? Are these less romantic to travel on? Answer लिखें. Yes, these are better than old ones. Moreover, these trains are more safe, faster, economical, environment friendly, and more romantic than the old trains. Question number 2. In your own word, explain what is meant by the following. अपने लफ्ज़ों में बताएं और explain करें. यहाँ जो sentences दिए गए हैं. First sentence है The dip and catch of the telegraph wires. The wire between 2 telegraph poles sags and then catches at the top of the pole. From a moving train, the wires seems to dip and rise. B question. Straight cut hawthorn hedges. The hawthorn hedges have been clipped and trimmed to keep them neat and tidy. Next word है sickly green. Answer है इसका a green which is very pale, like the skin color of a sick person. नेक्स्ट क्वेश्चन बी है वर्किंग विद वर्ड्स. लफ्ज़ों के साथ काम करना. सजेस्ट वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग मीनिंग्स. यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इसकी मीनिंग लिखनी है. अलाउड नॉइस का लिखें रोर, टीरिंग, राइपिंग, पुल्ड, ड्रैग्ड, क्वाइटनेस, साइलेंस, अ पर्सन हु इज़ नॉट ब्रेव, कोवर्ड, ट्रिम्ड अवर, स्टम्बल्ड अवर, स्लोली, ग्रेजुअली, humming like a bee, buzzing, held on tidy, clung, bright, dazzling, moving forward, advancing, moist and slippery, slimy. Working with words का question number 2 है
Carefully read the last 2 paragraphs of the story and pick out all the words from the sound noises. Carefully आपने इस चैप्टर के लास्ट 2 पैराग्राफ आपने रीड करने हैं, बहुत एहतियात से रीड करने हैं इस स्टोरी के, एंड पिक आउट, और आपने पिक आउट करने हैं ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि नॉइस से मुतलिक हैं या फिर साउंड से मुतलिक हैं। कैन यू फिट 7 वर्ड्स? आप फिट कर सकते हैं इस बॉक्स में 7 लफ्ज़ों को इनटू अ ग्रिड बिलो एग्जैक्टली एज दे अपीयर इन द पैसेज। बिल्कुल वही वर्ड्स आपने यहाँ चूज़ करने हैं जो पैसेज में दिए गए हैं। अपने आप से, इसका मतलब है अपने आप से आपने वर्ड नहीं लिखने, जो पैसेज में मौजूद है वही वर्ड उठा के आपने इनमें फिल करने हैं। ये शाउटिंग और साउंड्स वर्ड्स हमें बीच में दिया गया है और यहाँ जो ब्लैंक है हमने इसको फिल करना है। BLAST ब्लास्ट, ECHOING echoing, ROAR roar, rattle, RATTLE rattle, whiz, CLANGING clanging, JANGLING jangling. Can you add any other words for sounds to the above? आप और कुछ वर्ड्स जो साउंड के मुतालिक हैं आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। नॉइज, टोन, कॉल, बार्क, हॉलर, whimper, whoop, yell. Complete the following in your own words. The children saw Slimmy Ozzy Tackles crawling down the dark, damp cave walls. DAMPCAVE cave walls. Next sentence है everything is quite different. आगे लिखें since our last visit to this place, the windows all dim with yellow smoke in the tunnel. It was not yet quite daybreak, and now with a rush and a splash. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। अगर मेरी ये वीडियो आपके काम आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस तरह मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सकेगी। आपकी तरफ से लाइक और सब्सक्राइब वीडियो बनाने वाले के लिए हौसला अफजाई का सबब बनती है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विद द हेल्प ऑफ योर डिक्शनरी, डिक्शनरी की हेल्प से फाइंड एज मैनी मीनिंग्स as you can for each of the following words, see whether they are nouns or verbs. हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने इस वर्ड्स के मीनिंग लिखने हैं, लेकिन साथ ये भी बताना है कि वो नाउन है या वर्ब है। तो इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। फर्स्ट वर्ड है विंग, ये जो मैंने मीनिंग लिखे हैं ये नाउन है। अ बर्ड्स फ्लाइंग अपेंडेज और एन एयरक्राफ्ट पार्ट। नेक्स्ट जो मीनिंग है ये वर्ब है, इसके सामने वर्ब मैंने लिखा हुआ है, और जो नाउन है उसके सामने मैंने नाउन लिखा हुआ है। वर्ब है टू फ्लाई और सपोर्ट समवन, नाउन में लिखें सपोर्टिंग पार्ट ऑफ एन एयरप्लेन, ये भी नाउन है। जो नेक्स्ट सेंटेंस में बोल रही हूँ ये नाउन है। एडिशनल टू अ बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड है साइट, द एबिलिटी टू सी और व्यू, टू सी और एम और डिवाइस, ये साइट के। नेक्स्ट है टेक एब्रीविएशन ऑफ समथिंग विद एन इंस्ट्रूमेंट, ये वर्ब है। समथिंग वर्थ सीइंग, ये नाउन है। पॉन्ड, अ यूनिट ऑफ वेट, अ शेल्टर फॉर एनिमल्स और अ लाउड नॉइज, ये सारे नाउन हैं। टू स्ट्राइक और क्रश समथिंग, ये वर्ब है। बीट विथ फर्स्ट, ये भी वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है मैच, फर्स्ट फायर स्टार्टर, अ कंपटीशन और अ सिमिलैरिटी। टू पेयर और इग्नाइट समथिंग, ये वर्ब है। कंटेस्ट ऑफ स्किल, ये भी नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है रेस, अ स्पीड कंटेस्ट, अ ग्रुप विद कॉमन ट्रेड्स और अ रिवर करंट, ये नाउन है। टू कम्पीट, हरी और क्लासीफाई बेस्ड ऑन ट्रेड्स, ये वर्ब है। रूट ऑफ जिंजर, ये नाउन है। फुट, फुट की भी कई सारे मीनिंग है। स्टेप, स्पेस, ट्रेड, नाउन है। इन्फेंट्री, सोल्जर्स, नाउन है। यूनिट ऑफ लेंथ, नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यूज ईच वर्ड एज अ वर्ब फर्स्ट एंड देन एज नाउन। एग्जाम्पल, यहाँ हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं हमने इन वर्ड्स को के सेंटेंसेस बनाने हैं। एग्जाम्पल भी दी गई है, जैसे ये प्लेस वर्ड है, प्लेस योर बुक ऑन द शेल्फ, और इज़ दिस बुक वेयर वी कैन गेट सम रोलर स्केट्स। हमने भी इसी तरह के सेंटेंस बनाने हैं। यहाँ मैंने विंग का सेंटेंस बनाया है। पहला सेंटेंस वर्ब है और सेकंड वाले सेंटेंस में नाउन है।
वर्ब वाला सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। द ईगल विल विंग इट्स वे अक्रॉस द स्काई। और सेकेंड सेंटेंस नाउन का बनाएं। द लेफ्ट विंग ऑफ द एयरप्लेन वॉज डैमेज्ड। वर्ब बोलते हैं काम को, एक्शन को बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्शन ज़ाहिर हो रहा है। और नाउन नाम को बोलते हैं, तो यहाँ लेफ़्ट विंग यानी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा विंग? लेफ़्ट विंग ऑफ द एयरप्लेन वॉज डैमेज्ड, जिससे ज़ाहिर हो रहा है कि हम विंग का नाम लेके सेंटेंस बना रहे हैं और यहाँ पे वर्ब से विंग से काम लिया जा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वर्ड है ड्रम। ड्रम का सेंटेंस बनाएं अबाउट वर्ब के मुतालिक। ही लाइक टू ड्रम हिज फिंगर्स ऑन द टेबल व्हेन ही इज़ बोर्ड। और नेक्स्ट सेंटेंस बनाएं। पहले वाला सेंटेंस जो था वो वर्ब था, ये वाला नाउन है। द ड्रम इन द बैंड प्रोवाइडेड a rhythmic beat। नेक्स्ट वर्ड है पेंट्स। शी पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स ऑन कैनवस, ये वर्ब है। ही कीप्स हिज पेंट्स एंड ब्रशेस इन एन आर्ट स्टूडियो, ये नाउन है। लास्ट वर्ड है स्लाइस। प्लीज स्लाइस द ब्रेड फॉर सैंडविच, वर्ब है ये। शी कट अ थिन स्लाइस ऑफ केक फॉर, ये नाउन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे सी लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना। ऑल अबाउट टेंसेस, यहाँ हमें टेंसेस के बारे में काफ़ी तफसील से समझाया गया है और इन्हीं टेंसेस के मतलब यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस दिए गए हैं और इसमें सिंपल कौन सा है, कंटिन्यूस कौन सा है और परफेक्ट कौन सा है। तीनों ज़मानों के बारे में एक टेबल बना के समझाया गया है। इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इन योर नोटबुक मेक सिमिलर टेबल्स फॉर द वर्ब्स राइट, रीड एंड टॉक। राइट का वर्ड यूज़ करके और रीड का वर्ड यूज़ करके और टॉक का वर्ड यूज़ करके आपने भी इसी टाइप का एक टेबल बनाना है। टेबल बना के जैसे बुक वालों ने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के मतलब यहाँ सेंटेंसेस बनाए हैं, आपने भी इसी तरह बनाने हैं। मैं भी इसके नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। टेबल में सबसे पहले वर्ब लिखना है टू राइट, पास्ट हेडिंग देनी है, फिर प्रेजेंट की हेडिंग देके और फिर फ्यूचर टेंस की हेडिंग देके। और ये इस लाइन में आपने सिंपल, कंटिन्यूस और परफेक्ट लिखना है। टू राइट का हम पास्ट में कैसे यूज़ करेंगे? ही रोट। प्रेजेंट में लिखेंगे ही राइट्स, ई एस का इजाफा करेंगे क्योंकि प्रेजेंट में एस या ई ऐसे ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रेजेंट टेंस है। ही विल राइट। नेक्स्ट कंटिन्यूस में लिखें ही वॉज राइटिंग, प्रेजेंट में लिखें उससे नेक्स्ट लिखें ही इज़ राइटिंग, ही विल बी राइटिंग। परफेक्ट टेंस में पास्ट में लिखें ही हैड रिटन, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में लिखें ही हैज़ रिटन और परफेक्ट फ्यूचर टेंस में लिखें ही विल हैव रिटन। नेक्स्ट वर्ड है टू रीड। टू रीड का सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस लिखें ही रीड, नेक्स्ट लिखें ही रीड्स, ही विल रीड्स, ही वॉज रीडिंग, ही इज़ रीडिंग, he will be reading, he had read, he has read, he will have read। to talk verb है, सेंटेंस लिखें इसका he talked, he talks, he will talk, he was talking, he is talking, he will be talking, he had talked, he has talked, he will have talked। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेंसेस इज़ बीइंग यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सेंटेंसेस में कौन सा टेंस यूज़ हुआ है आपने ये बताना है। शी वॉज वॉकिंग, ING से पता चल रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। अब वॉज से हमने अंदाज़ा हो रहा है कि ये गुजरे हुए ज़माने का जिक्र हो रहा है। था, थे, थी, वॉज का क्या मतलब है? था, थे, थी, तो ये है पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है दे विल बी वर्किंग। वर्किंग के साथ, वर्क के साथ ING लगा है, इट्स मीन्स कि ये कॉन्टीन्यूस टेंस है। और विल बी से हमें पता चल रहा है, विल का मतलब है गा, गे, गी, और विल बी से हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है ही स्माइल्स। ही स्माइल्स के साथ एस लगा हुआ है और जहाँ एस आ जाए इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस है। एस का इजाफा हुआ है जिससे हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वर्कड।
वर्क के साथ ed लगा हुआ है, यानी सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, और सेकंड फॉर्म तब यूज़ होता है पास्ट टेंस के साथ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो ये कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी हैड स्लेप्ट। हैड का मतलब है चुका, और स्लीप इसकी फर्स्ट फॉर्म है और ये इसका सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट। सेकंड फॉर्म किस टेंस में यूज़ होता है? पास्ट टेंस में। और हैड जो है इससे पता चल रहा है कि ये परफेक्ट टेंस है। तो ये कौन सा टेंस है? शी हैड स्लेप्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 93 पेज पे ट्रांजिशन वर्ड्स कनेक्टिंग आइडियाज़। इस पैराग्राफ को आपने खुद ही पढ़ लेना है। और थर्ड क्वेश्चन है यूज़ द ट्रांजिशन वर्ड फ्रेजेस इन दिस बॉक्स टू कनेक्ट द क्लॉजेस बिलो। यहाँ हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करते हुए हमने इन ब्लैंक को फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है द गर्ल्स वांटेड एन आइसक्रीम कोन डैश दे लेफ्ट द पार्क अर्ली। लड़कियों को आइसक्रीम चाहिए थी डैश उन्होंने पार्क को जल्दी छोड़ दिया या वो पार्क से जल्दी चली गई। तो आप यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? देयरफॉर, लिहाजा। देयरफॉर का मतलब क्या है? लिहाजा। सेकंड वर्ड है, सेकंड सेंटेंस है यू कैन कम विद अस इफ़ यू आर रेडी डैश यू विल हैव टू राइड द बस। यू कैन कम विद अस, आप अगर हमारे साथ आ सकते हैं, इफ़ यू आर रेडी, अगर आप रेडी हैं, डैश यू विल हैव टू राइड द बस। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड सूट कर रहा है? हाउ एवर इस ब्लैंक में आप पुट कर लें। स्टूडेंट शुड बी क्वाइट ड्यूरिंग द प्ले डैश अ पॉज एट द एंड इज अलाउड। अ पॉज का मतलब है तालियां। तो इस ब्लैंक में आप लिखें सो मदर डिडंट हैव टाइम टू गो द स्टोर डैश देयर वॉज नो मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। यहाँ पे आप लिखें कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है इसके नतीजे में, यानी माँ के साथ स्टोर जाने का वक्त नहीं था, जिसके नतीजे में, यहाँ आप लिखें कॉन्सिक्वेंटली, जिसके नतीजे में फ्रिज में दूध नहीं था। लास्ट सेंटेंस देखें अहमद ब्रोक्स हिज आर्म ऑन स्विंग। स्विंग का मतलब है झूला। अहमद ने अपना जो आर्म है, बाजू है, वो स्विंग में टूट गया डैश ही कुडंट प्ले बास्केटबॉल फॉर मंथ्स आफ्टर यार्ड्स अदरवाइज ही कुडंट प्ले। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। आपने यहाँ से लेके इस पर यहाँ तक इस पैराग्राफ को अच्छे से रीड कर लेना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस ही पैराग्राफ से रिलेटेड है। इन द सेंटेंसेस बिलो, यहाँ बिलो में जो कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, सर्कल द एंटीसीडेंट एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन। यहाँ हमने बताना है कि एंटीसीडेंट कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है। तो रिदा जो है वो है एंटीसीडेंट। लाइक द मूवी बट शी, प्रोनाउन यूज़ हुआ है शी। लाइक द पॉपकॉर्न मोर। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन द बैड न्यूज़ क्या है? एंटीसीडेंट है। राइट इट केम, इट इसमें प्रोनाउन है विद सम गुड न्यूज़। अलीना एंड फातिमा इस सेंटेंस में एंटीसीडेंट है। वांटेड सैंडविच फॉर देयर इसमें प्रोनाउन है। लास्ट सेंटेंस है आल्तो समी ऑफन वेंट टू द लाइब्रेरी, इसमें समी जो है वो एंटीसीडेंट है, और टुडे ही स्टेड होम, ही जो है वो प्रोनाउन है। यहाँ मैंने AN लिखा हुआ है, AN से मतलब है एंटीसीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। द चिल्ड्रन वेंट इनटू अ टनल एंड अ ट्रेन केम हर्टलिंग बाय। डू यू थिंक दे वर फुलिश और एडवेंचर्स और बोथ? थिंक अबाउट दिस फॉर अ फ्यू मिनट, इसके बारे में आप चंद मिनट सोचें। एंड देन डिस्कस द आइडिया इन क्लास। यू मस्ट गिव सम रीजन्स फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, इसके मैं नोट बना चुकी हूँ, आपसे शेयर करूँगी। आंसर लिखें द चिल्ड्रंस एक्शन कैन बी सीन as both foolish and adventurous. Foolish, they entered a tunnel which is generally not a safe place for pedestrians. They didn't take proper precaution like checking for oncoming trains which could have put their lives at risk. और next point लिखें children might not fully understand the potential dangers in such situation. और adventurous में लिखें their decision to enter the tunnel shows a spirit of curiosity and a desire for adventures. Desire का मतलब है ख्वाहिश और curiosity का मतलब है मुतजस्सस। Next point लिखें It's possible they didn't anticipate the train's
arrival, making their actions more about seeking adventure than intentionally risking harm. Intentionally का मतलब है जानबूझकर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन ई है कंपोजिशन. राइट अबाउट वन ऑफ द फॉलोइंग. इनमें से कोई एक डन करना है. फर्स्ट है अ जर्नी बाय ट्रेन, बस और एरोप्लेन. या जर्नी लिखनी है ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन में, जर्नी के बारे में यानी सफ़र के बारे में लिखना है. और नेक्स्ट है द प्लेजर, लोनलीनेस और एक्साइटमेंट ऑफ ट्रैवलिंग अलोन. मेक श्योर यू यूज़ सम वर्ड्स फॉर साउंड एंड मोशन. किसी एक के बारे में आपने लिखना है, लेकिन ये श्योर हो आप इनमें से किसी भी पॉइंट के बारे में लिखें, लेकिन ये मेक श्योर हो कि उसमें साउंड और मोशन के कुछ वर्ड लिखे हुए हो. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है आई वेंट ऑन अ ट्रेन ट्रिप. द ट्रेन मेड अ क्लिक क्लैक साउंड एज इट्स व्हील्स मूव्ड on the tracks. It swayed का मतलब है डोल. It swayed gently from side to side. People on the train talked and sometimes they laughed. The view outside the window changed a lot. We saw fields and forest passing by quickly. The train made a loud whistle noise when we stopped at stations. When we arrived at our last stop, the train made a screeching sound as it stopped. Screeching का मतलब है चीखना. My train trip had lots of sounds, a movement. It was fun. इस वीडियो में यूनिट नंबर 8 इन अटर्नल की फुल एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है. नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 9 की फुल एक्सरसाइज के सोल्यूशन के साथ दोबारा मिलेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.